Hello and welcome to The Big Fight. Was it just a couple of weeks back that we did an episode of The Big Fight on whether these elections are going to end up getting communalized? And in the time since then, unfortunately, that fear has only continued to get further and further exaggerated and attenuated by the simple fact that the trouble that we've seen in Muzaffarnagar and there are sincere doubts and concerns that many people have as to whether that is going to now start spreading to other parts of the country. So we are going to want to take a close look at what happened actually in Muzaffarnagar and to see how that might actually be setting the stage of that's a horrible way to put it, but is it setting the stage for what could happen elsewhere as we head for the elections? And we've got an absolutely sensational panel here to take us through, including people who were here with us 2 weeks back to talk about the fact that these could be communalized elections. Let me start by welcoming Subramaniam Swamy, who was the president of the Janata Party, but is now a senior leader of the BJP and going to be very closely associated, as we've just seen, with the economic policies that will be followed. So it's great to have you with us. Rita Bahuguna Joshi joins us from Lucknow, who's a spokesperson of the Congress Party. We have Gaurav Bhatia, who's the head of the legal cell of the Samajwadi Party. It's great to have Mr. Surendra Bhadoria with us, who's a leader of the BSP. Mr. Kamal Farooqi, who, last time I did introduce you as a senior Samajwadi Party leader. Right now, I think perhaps more appropriate to say former chairman of the Delhi Minorities Commission and a member of the All India Muslim Personal Law Board. And still the member of Samajwadi Party. Still a member of the Samajwadi Party, but you don't completely agree with everything that the party is doing right now. No. That will come later on. So when we will start discussing. I'll give you a chance to warm up once we start the discussion. It's an honor to have with us Ashish Nandi, a sociologist who's really got a deep insight into what happens in riots like this and why they happen and what can be done. So great to have you with us. Aarti Jairath, thanks for being back out here. And I do want to welcome two really special guests whom actually I'd like everyone to put their hands together for. It's great to have with us Suraj Prakash Malik and Muzammil Hussain, who run a newspaper together in Muzaffarnagar, and they are from the two different communities which have been Jat and Muslim. Yeah, so one of you is a Jat and one of you is a Muslim. जाट एंड मुस्लिम जो दंगे हुए हैं जाट और मुस्लिम को लेकर के जो प्रचारित किया गया हुए हैं, हम इस जाट कम्युनिटी से हैं। आप सूरज प्रकाश मलिक, मैं मुजम्मिल हूँ। 25 साल से हम दोनों पार्टनरशिप में एक साथ रह रहे हैं और फिर जाट मुस्लिम का कैसा प्रचारित कर रहे हैं लोग, जाट मुस्लिम का ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह पूरे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे और ये सब दुष्प्रचार है। So that's really good to hear. और इन दंगों के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं आपको आई अपने समुदाय से? दिक्कत आई। असल में हुआ क्या सर कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक फुटबॉल बना दिया राजनीतिक नेताओं ने। कभी किसी के पाले में फुटबॉल को फेंकते हैं, कभी किसी के पाले में गेंद को फेंकते हैं। तो मुस्लिम वोटर्स का यूज हो रहा है केवल राजनीतिक फायदे के लिए। मुस्लिम्स की कोई समस्या हल करना नहीं चाहता। मुस्लिम्स को असल में हो रहा ये कि बहुत से जो फिरका परस्त पार्टियां हैं जो दंगा फसाद कराना, खास का आप नाम लेना चाहते हैं? हाँ, नाम लूंगा, मैं नाम लूंगा। बहुत सी फिरका परस्त पार्टियां जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं स्पष्ट कहूंगा, स्वामी जी बहुत अच्छे लीडर, देश के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वो पहले जनता पार्टी में रहे हैं, बाद में एक कम्युनल पार्टी में वो आ गए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है, मुस्लिम एक गेंद की तरह हो गया है, कभी उस पाले में गेंद, कभी उस पाले में। वोट के रूप में इसको यूज किया जाता है और उसका असल में प्रयास कर रही है फिरका परस्त पार्टी, उसके हाथ में गन दे दें। गन से मुस्लिम का भला नहीं होगा, मुस्लिम का भला होगा केवल कलम से। आज मुस्लिम को कलम की जरूरत है, गन की जरूरत नहीं है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सहित जैसे ऐसे फिरका परस्त दल हैं जो मुस्लिम को चाहते हैं उनके हाथ में गन दे दें, लेकिन ये गलत बात होगी, ये मुस्लिम का विनाश होगा। अच्छा, सूरज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो इफेक्टेड एरिया से हम आए हैं दोनों, तो ये प्रॉब्लम जब ये चली, ये इंटीरियर में पहुंची, हम लोग एक ही छत के नीचे बैठ के, एक ही ऑफिस में बैठ के अपना दोनों वर्क करते हैं। तो अब ये देखिए आप, इससे बड़ी सद्भावना क्या हो सकती है। लेकिन ये कि हमारे सियासत के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने इसको कितना बवंडर बना दिया इसका देश के अंदर, कि आज स्थिति ये है कि जैसे बिल्कुल अब जाट और मुस्लिम्स का ये झगड़ा दिखाकर कि आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन आप सामने एग्जाम्पल हैं, हम आपके सामने अभी भी हम रन कर रहे हैं, अभी भी बैठे हैं। अभी इफेक्टेड एरियाज़ में हम दोनों ने इकट्ठा काम किया है, अपने ऑफिस में वर्क काम करते हैं।
हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ क्या है? किसी ने इस बार खासतौर दंगों के बाद जब आप इलाके में गए, अपने समुदाय के लोगों से बात करी, क्या किसी ने कभी आपसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे पार्टनरशिप में अखबार चलाते हैं, कि कोई ऐसा ऐसी कहता कोई नहीं है? बात ना किसी की हिम्मत है और ना कही गई, उनको मालूम अच्छी है। बात है कि किसी ने कहा नहीं। किसी ने नहीं कहा। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तिस्सा गांव पड़ता है जहाँ एक घटना घटी है। जोलिए गांव है जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में डाले गए थे, कुछ वारदात हुई वहां पर। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ साथी हमारे दिल्ली से गए, तो पूरी टीम थी। उन्होंने कहा भाई हमें जोली का भ्रमण करना है। तो जोली और हम लोग गए, तो उन्होंने मेरे साथियों ने कहा, कुछ दिल्ली वालों ने, कि यार तुम मुजम्मिल अपना नाम चेंज कर दो, मनोज अपना नाम रखना, क्योंकि जाटो गांव में हम जा रहे हैं, जाट मुस्लिम यहाँ छिड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ, चलो अपना नाम चेंज कर देते हैं। तो हम गए वहाँ पर तिस्सा गाँव, जो प्योरली जाटो गाँव है। तो मैंने देखा कि जाट लड़के जो, चूंकि मैं एक प्लेयर से आया हूँ इस लाइन में, कराटे का मैं प्लेयर हूँ, तो जाट लड़के जो मेरे शागिर्द थे, उन्होंने अपना तमाम सबने मेरे पैर छुए, मट्ठा पिलाया, बड़ी स्वागत किया। तो मीडिया के साथ ही दिल्ली के हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा कैसा मुस्लिम और जाट यहाँ झगड़ा है, तो सब बहुत आपको प्यार दे रहे हैं। ये तो आपने अपना नाम नहीं चेंज नहीं, किया? नाम चेंज नहीं करा, नाम आप नहीं मुजम्मिल के नाम से ही वहां गए? जी नहीं, सब लोगों ने बड़ा सम्मान दिया जाटों ने। अच्छा।